A very good afternoon to all. Welcome to Tally CA Connect. Our today's topic of discussion is based on GSTR 9 and 9C, where we will cover the important amendments and how we can prepare GSTR 9 and GSTR 9C using the information from Tally Prime. Our expert for today is CA Rajesh Kumar Khandelwal. One thing I can say for sure is that Rajesh sir is the best person to learn and understand GST queries from. He is empaneled as a faculty for GST training in India by Institute of Chartered Accountants of India, Delhi. He is also invited as guest and visiting faculty to train team of CGST and SGST officers. CA Rajesh ji, being a passionate trainer, is also a practicing chartered accountant and has a rich experience of GST, VAT, income tax, auditing, and corporate finance. And also, we are grateful to have him today as a Tally. I'm grateful to him for being a Tally evangelist. And thank you, sir, for being here today and help us plan such a useful topic for the community. And well, this is a festival week, so wishing you all a very happy Diwali in advance. So over to you, Rajesh, sir. Thank you, Komal ji. Yeah. And I'm just one more thing I would like to add is because we have a good crowd here, please put in your queries in Q&A because sir will be taking on the amendments and the how to use the Tally information and everything. So instead, we do not want to miss out on any queries. Please put in your queries in Q&A only. And in case Rajesh sir asks you any questions, so for that, please use the chat box. Thank you so much. Thank you, Komal ji. And thank you, Tally, for giving me this opportunity. और जैसा कि मैडम ने बताया, दिवाली फेस्टिव अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा. And in this program, I will be very slow because there are few important amendments as in respect of GSTR 9 and 9C, which will be going to be filed. The last date is 31st December 2023. और मैं आपको टैली भी दिखाऊंगा कि टैली के थ्रू हम लोग GSTR 9 और 9C कैसे 2017 से ही बना रहे हैं. और स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए जरूर दिखाना चाहूंगा जो जब टैली डेटा पे काम करते हैं ना, तो वो कुछ फील्ड को बायपास कर देते हैं. इफ यू आर अडॉप्टिंग ईच एंड एवरी फील्ड, आप जितना भी मास्टर डेटा है उसके हर फील्ड को फिलअप करके चलते हैं, देन देयर विल बी नो इशू. दिस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर विल टेक केयर about all the fields and will prepare the GSTR1, GSTR3B. So it will help at the end of financial year. Almost GSTR 9 and 9C आपको भरी हुई मिलती, सॉरी आपको प्रिपेयर हुई मिलती है. बट मेरा फोकस उनके लिए है, मेनली मेरा फोकस उनके लिए है जो उस फील्ड, जो मास्टर डाटा के अंदर फील्ड्स है ना, उनको बायपास कर देते हैं. तो मैंने इसका एक वे आउट ढूंढा और आई एम वर्किंग ऑन इट सिंस 2017. और मुझे इतनी हेल्प मिलती है जहां पे कोई GSTR 9 और 9C, अगर मैं कहूं कि मेरे पास बिल्कुल रॉ डेटा है, कोई मेरे पास टैली सॉफ्टवेयर है और कोई सॉफ्टवेयर दूसरा नहीं है, तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से काम करूंगा, मींस मुझे परचेज में कैलकुलेशन करनी है, व्हाट ITC आई हैव टेकन एंड आई वांट टू वेरीफाई ऑल दी सेल्स डिटेल, परचेज डिटेल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच आई हैव टेकन ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ हो सकता है. लेकिन टैली से जो काम मैं मैनुअली करूंगा, जिसमें मेरे को 5 से 7 घंटे लगने वाले हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये केवल आपका, अगर कोई बहुत एक मिड साइज फर्म है, तो आपका केवल और केवल 2 घंटे के अंदर आपकी ना सिर्फ 9 बट यू कैन आल्सो प्रिपेयर 9C. तो बहुत स्लो चलूंगा मैं और अभी टैली भी आपको दिखाऊंगा. और टैली के बारे में सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर को टच किया था ना, तो मैंने टैली ही स्टार्ट किया. मुझे कंप्यूटर चलाना बाद में आया था. I have started Tally first. My deliberation will be in Hindi and English, both languages. I love to speak in Hindi, so please bear with me. Now I am sharing my screen, and I want to Rajesh sir, so if we can make it that we cover something in Hindi, we'll also repeat that in English so that everybody understands the same. Okay. Now I am sharing my screen and I want to show you all the forms and all the amendments GSTR 9 and 9C. Just wait. Komal, whether it is visible? Yes, sir. The screen is visible. Okay. First, I will tell you the important amendment, and I will log in my GSTN account also.
and I will show you the impact of these amendments. जो GSTR 9 है, it is divided into various parts. There are total 18 tables in GSTR 9. और जो ये GSTR 9 के अंदर 18 tables हैं, few tables are optional and few tables are mandatory. Now I want to tell you those tables which are optional, which were optional in the previous financial year, but for the financial year 22-23 it is mandatory. What are those tables? देखिए, GSTR 9 पे जाने से पहले एक इसका ना एक ओवरव्यू ले लेते हैं. I can divide entire GSTR 9 into two parts. In first part, table number 4, 5, 6, 7 and 9. These are total 5 tables. In second part, table number 10, 11, 12, 13 and 14. In right hand, I have also 5 tables. In left hand, I have also 5 tables. Table 4, 5, 6, 7 and 9. And table 10, 11, 12, 13 and 14. These are the only tables which need to be taken care at the time of filing of GSTR 9. Rest of the tables, rest of the tables may be optional or may be not important. Like table number 8. It is not meant for us, it is for the GST department. And table number 15, table number 16, table number 17, table number 18, table number 19, all these tables are optional. तो मैं बात करूंगा आपसे केवल और केवल इनकी 4, 5, 6, 7 और 9 and table number 10, 11, 12, 13 and 14. And what are the important amendments? आपको पता होगा टेबल नंबर 14, इसके अंदर जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है विच इज टैक्सेबल, और इसका जो डेटा आता है वो GSTR 1 से उठ के आता है. इसके अंदर अभी तक क्या था, जो अमेंडमेंट्स होनी थी, if I have issued any invoice reporting in GSTR 1 and I have amended during the financial year 22-23, तो जो अमेंडमेंट की फिगर थी उसको मुझे नेट करके डालना था ABCDE में, जहां पर भी वो उससे लिंक करता था. तो टेबल नंबर I, J, K, L ये सब ना ऑप्शनल थी, बट फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 इनको मैंडेटरी कर दिया. तो जो ये वाली टेबल्स हैं, कौन सी वाली, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, प्लस माइनस अमेंडमेंट, ऑल दीज आर मैंडेटरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23. दीज आर नॉट ऑप्शनल नाउ. टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 के अंदर क्या आता है, टेबल नंबर 5 के अंदर वो चीजें आती हैं, आउटवर्ड सप्लाई है बट आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई है बट जो सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, नीड नॉट टू पे एनी टैक्स. व्हाई? बिकॉज सप्लाई में बी जीरो रेटेड विद LUT, मींस विदाउट पेमेंट ऑफ GST. तो ऐसी कोई भी सप्लाई है जिस पे टैक्स पे नहीं करना है, इट शुड बी फिल्ड इन टेबल नंबर 5, 5A, 5B, 5C, D, E, F. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेजर अमेंडमेंट है, इट वाज हैपन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 आल्सो. जो टेबल नंबर 5D है, E है, F है, स्टार्टिंग के जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, GSTN CBIC has given an option that any item which comes to table number 5D, 5E, 5F can be reported in table number 5D only. But with effect from financial year 21-22 and thereafter, 5F is mandatory and we can merge 5D and 5E, और 5D और E को मर्ज करके हम अमाउंट की रिपोर्टिंग 5D में कर सकते हैं. मींस वी कैन मर्ज 5D and E, means exempted turnover, related turnover, both can be reported in 5D only. ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर आ चुके थे, बट आई हैव सीन सम मिस्टेक्स इन द लास्ट ईयर GSTR 990, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट. सो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर देयर इज नो न्यू थिंग्स इन इन टेबल नंबर 4 एंड इन टेबल नंबर 5. कोई नई चीज नहीं है, ना टेबल नंबर 4 के अंदर है, ना टेबल नंबर 5 के अंदर. जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में था वही 22-23 के अंदर.
नाउ टेबल नंबर 6, अभी टेबल नंबर 6 की ना मैं बाद में बात करता हूँ, टेबल नंबर 6 की बाद में बात करता हूँ. आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन टेबल नंबर 9. I am directly coming on table number 9. Table number 9, what is the table number 9? Table number 9 heading is detail of tax paid as declared in returns filed during the financial year. Means whatever tax a registered person needs to pay will be reported in table number 9 of GSTR 9. अब ये कौन सा टैक्स होगा जो टेबल नंबर 9 में दिखाना है? There may be 3 taxes. One is tax on outward supply, another tax paid on advances, because if a service provider received advance then he is liable to pay tax on advance also, क्योंकि गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो वहां पे टैक्स नहीं है, बट इन केस ऑफ सर्विस एडवांस पे भी टैक्स है. एंड इफ registered person taking any inward supply which is liable to RCM, so he need to pay RCM, तो उसको वो भी यहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है टेबल नंबर 4 के अंदर. तो ये 3 टैक्स हुए आपके, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन एडवांस एंड टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. वो तीनों के तीनों टैक्स आपके टेबल नंबर 9 में आने चाहिए. टेबल नंबर 9 इन कॉलम नंबर 2 टैक्स पेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल, सेंट्रल टैक्स पेबल, स्टेट टैक्स पेबल, सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, व्हाटएवर पे. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका जो अमाउंट है टेबल नंबर 9 कॉलम 2, इट शुड बी मैच्ड with this amount. It should be matched with this amount. Table number 4n. It should be matched with table number 4n. 4n में जितना भी अमाउंट आएगा ना टैक्स का वो मैच होना चाहिए. So when you file any GSTR 9, so kindly take care of it that amount which is mentioned in table number 4n, it should be matched in table number 9. Payable. And rest of the tables, rest of the column of table number 9 is not editable. Kindly note that tax payable column is editable, और जो बाकी के जितने भी आपके कॉलम्स हैं, पेड थ्रू कैश, पेड थ्रू ITC, ये सभी आपके एडिटेबल नहीं है, इनको आप एडिट कर सकते हो. काइंडली नोट, अगर यहाँ पर आपका कोई भी डिफरेंस आता है, if tax payable is more and payment of tax is less, then it may be a reason of notice from the GST department. So kindly take care of it. और ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास में आए हैं जहां पर क्या हुआ है, बिकॉज टेबल नंबर 9 जो है ना, ये टेबल नंबर 9 है, 9 की ये ऑटो पॉपुलेटेड है, और ये ऑटो पॉपुलेटेड कहां से? इट इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम दी टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 3B, बट वी हैव कोरिलेट टू इट विद टेबल नंबर 4 ऑफ GSTR. ऐसी गलती प्लीज नहीं होनी चाहिए, और जो नोटिस आ सकता है उससे बच सके. नाउ आई एम कमिंग टू टेबल नंबर 6, और जो टेबल नंबर 6 है ना, इस साल तो बहुत मैसअप होने वाला है. क्यों मैसअप होने वाला है? इसलिए मैसअप होने वाला है बिकॉज in the month of July 2022, government has issued a new notification in respect of GSTR 3B, and they have also issued a circular in respect of GSTR 3B, and they have amended the different tables. They have amended the reporting procedure in the different tables of GSTR 3. अब आपको पता है ना, GSTR 3B की टेबल 4B1 और GSTR 3B की टेबल 4B2, इनको रिपोर्टिंग प्रोसीजर चेंज कर दिया है. एंड ऑल्सो दे हैव अमेंड टेबल 4D1 एंड टेबल 4D2. जो टेबल 4B है GSTR 3B की, B फॉर बॉम्बे, जो टेबल 4B है, B1 is reporting those input tax credit reversal which are in permanent in nature. लेकिन 4B2 में कौन से आएंगे? जो कि रिवर्सल टेम्परेरी नेचर के. अब क्या हुआ, पूरे साल हम लोग करते रहे, टेम्परेरी रिवर्सल करते रहे, देन वी हैव रिक्लेम्ड इट इन 4D1, 4A5. उसके बाद अगर मान लीजिए हमें कोई रिवर्स करना था टेम्परेरी से फाइनल के अंदर परमानेंट में, देन 4D1, 4A5 एंड 4B1. मैं भी आपको दिखाऊंगा
क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। GSTR 3B, दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ GSTR 3B, और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? 5 जुलाई 2022 से। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट हैज अमेंड दीज टू टेबल्स 4B एंड 4D। यहां पर क्या हुआ, जो हमें रिवर्स करना था टेम्परेरी रूप में, उसको हमने दिखाया 4B2 में। इफ आवर रिवर्सल वाज परमानेंट इन नेचर, then a registered person has reported this reversal in 4B1। अब क्या हुआ, जो टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल था, when all conditions were satisfied, then the registered person has reclaimed this temporary reversal amount। और जब उसने reclaim किया तो उसने कहां दिखाया? फर्स्ट 4D1, ITC reclaimed 4D1 and 4A5, दो जगह दिखा दिया। और अगर मान लीजिए टेम्परेरी रिवर्सल था और उसके बाद उसको परमानेंट रिवर्स करना था, तो उसने क्या किया? 4D1, 4A5 एंड 4B1। अब ये हम कर चुके। एंड और हमने कहां से स्टार्ट किया इसको करना? जुलाई 22 के बाद जो भी GSTR 3B फाइल की, और अब हमें फाइल करनी है GSTR 9। इवन टुडे CBIC, GSTN कोई भी एडवाइजरी इशू नहीं करी है हाउ टू रिपोर्ट ऑल दीज ट्रांजेक्शन विच वी हैव फर्स्ट अवेल्ड, देन रिवर्स्ड, देन रिक्लेम्ड। अब कैसे रिपोर्ट करना है कुछ किसी को नहीं पता, कोई इनके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं बड़ा मैसअप होने वाला है, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए एक बार आपको देखना पड़ेगा, एक सबसे छोटी वाली जो आपकी GSTR 9 है वहां से आप स्टार्ट करिए। और मैं आपको एक एग्जांपल पुट करता हूं कि कितना मैसअप होने वाला है। आई वांट टू पुट वन सिंपल एग्जांपल, काइंडली नोट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक एंड रिप्लाई। बड़ा सिंपल एग्जांपल है। सपोज आई हैव टेकन, मैं भी नोट कर रहा हूं, आई हैव टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 22, 5000। I have taken an ITC in April 5000. So in the month of April, when I will file my return on 20th May 2022, then 5000 will be credited to my input tax credit list. Kindly listen me carefully and note it down. मैंने अप्रैल में 5000 रुपए का क्रेडिट लिया, मई 20 को रिटर्न फाइल करी और 5000 मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में चला। Thereafter, in month of October, I have another ITC of 5000, but I have not paid within 180 days for that guy from whom I have taken inward supply in the month of April 22. 180 days में पेमेंट नहीं किया मैंने उसको जिसको मैंने अप्रैल 22 में इनवर्ट सप्लाई ली थी। सो अक्टूबर में आई नीड टू रिवर्स इट। अक्टूबर में मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर there was an ITC of rupees 5000 and there was a reversal of 5000. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में कितना पहुंचा? नील अमाउंट। नील अमाउंट इज क्रेडिटेड इन माय इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। thereafter, suppose in the month of March 23, suppose in the February or March, whatever be the month, registered person has paid the amount for the goods or services which he has purchased in the month of April. किया तो 180 डेज के बाद में, लेकिन सपोज उसने क्या किया मार्च या अप्रैल में, मैं मार्च का मान के चल रहा हूं, 180 डेज में पेमेंट कर दिया। सो उसको क्या होगा? 5000 मार्च में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जब मार्च में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उसको, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर अगेन क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। तो मेरे पास में क्या हुआ? प्लीज लिसन केयरफुली। In April, I have taken ITC of rupees 5000. In the month of October, I have taken ITC of 5000 and a reversal of 5000 and input tax credit. मैं कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ। And in the month of March, I have again taken
ITC of rupees 5,000 because I have made the payment to that guy from whom I have taken inward supply in the month of April 22. Now my question, जो GSTR 9 की टेबल 8 है, 8A है, उसमें कितना अमाउंट जाएगा? काइंडली आंसर। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि सर करंटली स्क्रीन इज टेबल, ओके कोई इशू नहीं है, मैं टेबल 9 को यस, आई थिंक नाउ GSTR 9 is showing and I am asking my question in respect of table number 8. Table number 8, yes. If you have noted my figures, so please answer me, what amount will be reflected in table 8A? Naman Garg 5,000. 8A will be 10,000. Vikas ji. Shankar ji 10,000. My opinion is also amount will be reflected in 8A. It will be 10,000 rupees. Pakka, there is no dispute, 10,000 होगा। अब इसको हमें रिपोर्ट कैसे करना है? क्योंकि मैं क्या कर चुका हूं, मैंने अप्रैल में क्रेडिट लिया, I have also taken credit in March and I have also taken credit in October. Now my question to all of you, what amount will be auto-populated in table number 6A? Please tell me, what amount will be auto-populated in table number 6A? Whether it is 5,000, whether it is 10,000 or whether it is 15,000. Yeah. Dinu 5,000, Shankar 5,000, Vineet Jain 10,000. Yes, Venkatesh ji 10,000. Sir, why 10,000? Sir, please listen me carefully. Please listen me carefully. In the month of April, I have taken credit of 5,000. In the month of October, I have also taken credit of 5,000. In the month of March, I have also taken credit of 5,000. All these figures I have put in table number 4A, 5. So whatever figure I have put in 4A, 5 will be auto-populated in table number 6A. So amount should be 15,000, not 5,000, not 10,000. It should be 15,000. सर पक्का 15,000 होने वाला है, कोई 5 और 10,000 रुपए नहीं है। यस, आशीष त्रिवेदी जी, यस 15,000। अब क्वेश्चन अराइज होता है, नाउ आई नीड टू रिपोर्ट दिस अमाउंट इन टेबल नंबर 6B C D E F G H। अब आप मुझे बताइए, व्हाट अमाउंट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6B? कितना अमाउंट रिपोर्ट होगा टेबल नंबर 6B में? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना अमाउंट रिफ्लेक्टेड होगा? All some are saying that it will be 15,000 and some are saying that it will be 10,000, but most of no Balaji 15,000, Pratibha 10,000, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं ना। विकास 10,000, 3 न्यू मैसेज ऑल्सो। अच्छा 5,000, तो क्या होगा मेरा 8B में कितना जाएगा? अगर मैं 6B में 15,000, if I report 15,000 in 6B, then what amount will be reflected in table 8B? Please tell me. And I am 100% sure it will be 15,000. जब मैं 6B में 15,000 दिखाऊंगा तो पक्का 8B में 15,000 जाने वाला है। And you all told me that in table 8A it will be 10,000. So difference आ गया ना, difference आ गया यहाँ पे, because in table 8A it will be 10,000 and you are just saying that in 6B it will be 15,000, और जब 6B में 15,000 आएगा then definitely it will be auto populated in 8B and here it will be auto populated as 15,000। तो नोटिस पक्का आने वाला है। क्यों आने वाला है?
because it is showing that you have claimed 5,000 more, और इसके बेस पे तो आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको पहला वाला बताया कि बहुत मैसअप होने वाला है, हाउ यू विल रिपोर्ट इट, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, अब करना कैसे है? अगर मैं 5,000 दिखाऊंगा यहां पे, तो बाकी 5,000 को कहां दिखाऊंगा? यस प्लीज। अच्छा, अक्षत मेहता जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Sir, that's why I have requested, please note it down. Okay, I am repeating my question again. So it is my request to everyone, please note down my question, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का, और थोड़े से जो अमेंडमेंट है। I am repeating my question. In the month of April, I have taken an ITC of rupees 5,000. In the month of April 22, I have taken ITC of 5,000, but I have not made any payment up to the September 22 for this inward supply. तो जब मैंने सितंबर तक नहीं किया तो मुझे रिवर्स करना था, और मैंने इसको क्या किया, मैंने अक्टूबर में रिवर्स किया। जब मैंने अक्टूबर में रिवर्स किया तो अगेन अक्टूबर में मेरे पास 5,000 का आईटीसी था, और मैंने ये 5,000 रिवर्स कर दिया, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में गया 0. बट इन द मंथ ऑफ मार्च, because I have made the payment to the for the inward supply, तो मैंने क्या किया, I have reclaimed this amount in the month of March. तो 3 GSTR 3B I have filed. In April, I have taken credit of 5,000. In the month of October, I have also taken credit of 5,000 in table 4A5. And in the month of March, I have also taken a credit of 5,000. So this is the total amount of 15,000, and it will be auto-populated in table number 6A. Now my question is that how much amount I will report in table number 6B, whether it is 5,000, whether it is 10,000, or whether it is 15,000. तो अभी जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो आप सभी ने आंसर किया that in table 8, in table number 8, auto-populated amount will be only 10,000, because I have taken only 2 inward supply on which input tax credit in the month of March 5,000, and in the month of April 5,000, and in the month of October 5,000. मार्च वाला तो मैंने रिक्लेम किया था ना, तो in table 8A it will be reflected only 10,000. Now my question is to what will I report in table number 6B? अब 6B में ही तो क्वेश्चन है सारा। अगर मैं 6B में, अभी आंसर आया कि 15,000 रिपोर्ट करना है, तो मैंने यहां पे दिखाया if I report 15,000 in 6B, then there will be a difference. There will be a difference in table number 8C. Why? Because if I report 15,000 in table number 6B, then definitely it will be auto-populated in 8B. And in 8A, it will be 10,000. In 8B, it will be 15,000. And there is a difference of 5,000. It means to a GST officer, it is an excess availment of input tax credit. And definitely, notice will come. अच्छा जी, I have clarified all the things which I have already deliberated. अब दूसरा पॉइंट, अब कुछ का क्वेश्चन आया, आंसर आया अभी यहाँ पे 6H के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 6H को भी देख लेते हैं। अब यहां पर 6H में मैं 5,000 रिपोर्ट करूंगा। अभी मैंने एक आंसर देखा था। अच्छा, ओहो, विनीत जैन, सर व्हाट इफ समवन हैव नॉट फॉलोड द रिपोर्टिंग चांसेस एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 22? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका कहना है सर सारी बात तो छोड़िए, वी हैव नॉट फॉलोड दिस सिस्टम। इफ यू हैव नॉट फॉलोड दिस सिस्टम तो क्या होगा? It is a case of incorrect reporting in GSTR 3. It is a case of incorrect reporting in GSTR 3B. There may be a high possibility of notice for penalty. क्योंकि आपको जो करेक्ट रिपोर्टिंग करनी थी वो आपने रिपोर्ट नहीं करी, तो डेफिनेटली आ सकता है। Now you have to prove that why you have not reported the correct reporting in GSTR 3. अच्छा, Mr. Yes, table 6H. But Mr. Yes, how much amount we need to report in table number 6H?
5000, यस 5000, प्रतिभा 5000, ओके। अगर हम 6H में 5000 करेंगे, then what will be amount reported in table number 6B? Please tell me also. 10,000? No. In table number 6, in table number 6A, if अगर आपने क्या किया, यहां तो आपने और भी एक अमाउंट, आप एक स्टेप और आगे चले गए। किरण का कहना है it will be 5,000. Can I put amount of ITC as per books in 6B? Yes sir, it should be as per 6B but subject to GSTR 3B. दोनों में से जो कम हो आपको वो लेना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने टेबल नंबर 6B में आपने रिपोर्ट किया 15,000 and in table number 6H you have reported 5,000, then in table number 8B it will be auto populated at 20,000. It will be auto populated as 20,000. Why I am saying this? Because please look here, ITC as per sum total of 6B and 6H. In 6B you are saying that it will be 10,000. In 6H you are saying that it will be 5,000. So here it will be auto populated in 20,000. पहले तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा था, अब तो 10,000 का डिफरेंस आएगा। अब तो नोटिस के चांस और ज्यादा हो गए। इतना आसान नहीं है इस बार की GSTR 99C को फाइल करना, और कोई डिस्कस नहीं कर रहा है इस टॉपिक को, कोई भी। इसके बाद में अभी अच्छा, कुछ और ने भी आंसर किए हैं, अभी वो देख लेता हूं एक बार। यस, आशीष त्रिवेदी जी 10,000 इन विच टेबल सर? 11, 5,000 in 6B and 5,000 6H. नमन गर्ग 6B 10,000, 6H 5,000. आशीष द्विवेदी जी सेइंग 6B ओके। तो अभी तो बहुत मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। अमाउंट शीट इज नॉट शोइंग टू मी। मैंने अभी कोई अमाउंट शीट दिखाई नहीं, मैंने कोई भी अमाउंट शीट नहीं दिखाई अभी आपको। आई एम जस्ट showing format of GSTR 9 table number 6. Now BS Venkatesh 6B 5,000, 6H 5,000. ये लॉजिकल लगता है, ये लॉजिकल लगता है। 6B 5,000, 6H 5,000. Why? When you read the notes of this GSTR 9, in the notes it is clearly reflecting that whatever amount is availed reverse then reclaimed will not be part of 6B, it will be part of 6H. And if you report any amount in 6H, then it will not be part of 6B. इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? In table number 6B, reporting amount should be 5,000. In table number 6H, reporting amount should be 10,000. When we report 5,000 in 6B, 5,000 in 6H, then in table number 8B, it will be auto-populated as 10,000. And in table number A, as we have all finalized that in 8A, it will be 10,000. If 8A is 10,000, 8B is 10,000, then there will be no difference. There will be no difference in table 8D. Now, it is a very minimum chance, or there is no chance. Because there is no difference, then तो कंप्यूटर पकड़ेगा क्या? Because these days every notice is depend upon the artificial intelligence. If there is a difference, then there is a chance of notice. If there is no difference, then chance is very minimal. तो ये एक thought process हो सकता है that we should report 5,006B and 5,006H. Now another question arises. If we report 5,006B and if we report 5,006H, then there will be a difference. Then there will be a difference in table number 6J. Then there will be a difference in table number 6J. Why? Because in table number 6A, amount will be reflected as 15,000. And sum total of B to H is 10,000. So there is a difference of rupees 5,000 in table number 6J. So
if any point of time notice has come, then definitely we need to reply that why this reason has been arise. अब क्वेश्चन अराइज होता है सही मेथड कौन सा है, विच मेथड इज करेक्ट. ऑल मेथड इज करेक्ट, whatever you want to report, but you have reasoning in your file. अगर रीजनिंग नहीं है ना तो आपने कितनी भी बढ़िया रिपोर्टिंग कर ली, सब गलत है. इफ यू हैव रीजनिंग then every reporting is correct, because GSTN, CBIC, Government of India, no one has issued any advisory. और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बात बताता हूं, very interesting. Whether GSTR 3B is reflecting, please confirm me. This is the GSTR 3B. Whether it is reflecting, please. Yes, sir. Okay, thank you. No, Namargar is saying no and Karthik is saying yes. So I am assuming it is reflecting. जब भी हम GSTR 9 फाइल करते हैं ना, तो 9 के टैब में एक कंसोलिडेटेड GSTR 3B आती है, और जिसके अंदर जो भी 12 GSTR 3B वी हैव फाइल्ड, उनका सभी का सम टोटल होता है GSTR 3B. इट इज कॉल्ड consolidated GSTR 3B for the entire financial year. Now GSTR 3B has been changed. Reporting in case of GSTR 3B with effect from July 22 has been changed. अब हमारे पास में जो consolidated GSTR 3B आनी चाहिए, it should be in such format which is right now is on your screen. I am not telling about the Rajesh, so are you showing the PDF of GSTR 3B? Yes. Yes. Because currently it's showing USB disk F, Tally 8 degree and 4 PDFs. Have you opened 3B? I think you need to double click in it. आपने 3B खोला है तो वो स्क्रीन नहीं विजिबल है. अच्छा एक मिनट मैं दोबारा कर. Yes, please. I think it is visible now. Yes. The word, yeah. अच्छा ठीक है. Yes, this is the new format of GSTR 3B. Now I want to show you one interesting aspect. Now I am logging into GSTN और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है. अभी 1 मिनट में लॉगिन कर रहा हूं, अभी यहीं पे आपके सामने, और अभी आप देखेंगे 1 मिनट में कहां पे हूं. यस, अभी मैं स्क्रीन अभी आपके सामने दोबारा से शेयर करता हूं. यस, स्क्रीन शो हो रही है ना. My ID is RKCA MBA LLB. Now password is yes. I think common portal is visible. Komal, I am on dashboard. Sorry, I am on dashboard and I am on annual return. Search GSTR 9. Next. मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में. डाउनलोड GSTR 3B summary PDF. I am downloading it. It is downloaded. अब मुझे दोबारा से स्क्रीन स्टॉप करके आपको फिर से शेयर करना पड़ेगा. 1 मिनट. मैं एंटायर स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा. यस, it is consolidated GSTR 3B for reference purpose only, which I have downloaded from the common portal right now. Please see, this is the current format of GSTR 3B which is given by GSTN to me.
आपने इसका एक्सपीरियंस किया है अभी तक? बिकॉज GSTR 3B is already changed. GSTR 3B is already changed, but we have not got it from the. अच्छा अभी भी सर प्लीज ओपन. अच्छा अभी भी तो बैक स्क्रीन वापस चला गया. एक मिनट, एक कोई इशू नहीं. जस्ट मैं इस बार कोशिश करता हूँ कि मुझे जरूरत ना पड़े. यस अब ठीक है. प्लीज हाँ या ना बताइए. कोमल, इट इज रिफ्लेक्टिंग. Yes, okay. Now whether new format of GSTR 3B is reflecting? Yes, please. Okay. अब कोई इशू नहीं है, इसका मतलब मैं सब कुछ दिखा पाऊंगा. Yes, this is old. Okay. This is the new format of GSTR 3B और हमें यही फॉर्मेट डाउनलोड होना चाहिए because we have already reported all the figure from July 22 to March 23. इस फॉर्मेट में हमने सारी फिगर अपनी रिपोर्ट करी है, सारी की सारी जितनी भी होनी चाहिए. और हमारे पास में आ क्या रहा है? हमारे पास में ये आ. If you want to take help from this GSTR 3B, then it will not work. पक्का आप ये ध्यान रखना, बहुत मैसअप होने वाला है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं. क्योंकि हमसे भरवाया क्या गया? What we have filled this GSTR 3B, and this is totally different from this GSTR 3B which I have downloaded this right now from the software. So kindly take care. All these reporting requirement when you will file your GSTR 9. I am talking about only GSTR 9, not anything other than. तो मैं यहां पे था टेबल नंबर 6ABC. अब इसमें क्वेश्चन और आता है, वो मैं भी क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा. मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया था कि टेबल नंबर 6A में 15,000 रिफ्लेक्ट होंगे. यू नीड टू रिपोर्ट in 6B 5,000. You need to report 6H 5,000. Then there is a difference in table number 6J of rupees 5,000. Some of experts are doing that difference which is arise in table number 6A. They put a figure in table number 6M to reconcile the difference. ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है. वट एवर प्रोसीजर यू फॉलो, ऑल प्रोसीजर आर करेक्ट, नथिंग इज करेक्ट. क्योंकि मुझे पता ही नहीं गया कि हाउ आई विल रिपोर्ट दिस अमाउंट. अब क्या हुआ? काइंडली रिमेंबर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 22 आई हैव रिवर्स्ड माय अमाउंट इन टेबल नंबर 4B. काइंडली नोट in my example, in the month of October 22, I have report rupees 5,000 because I have not paid within 180 days. So it is a great chance. I don't know whether it will appear or not in table number 7. Because kindly note, as per rule 37, why rule 37? Rule 37 is for a reversal on account of non-payment within 180 days from the date of invoice for the payment of supply of goods, service or both along with ITC. तो यहां पर उसको रिवर्स करना होता है. अभी मैंने देखा नहीं है, अगर यहाँ पे भी वो रिवर्सल रिपोर्ट करना पड़ा, यहाँ पे भी रिवर्सल वो आपका अपीयर हुआ, देन अगेन यू नीड टू टेक एन अनदर डिसीजन वेदर वो यहाँ पे दिखाना या नहीं दिखाना. यहाँ पर लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, if amount is reclaimed in the same financial year, so I think it should not be reported in table number 7. If it is reclaimed in the next financial year, then definitely it should be reported here. और इसके बाद में कोई ऐसा इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है.
बाकी सारी चीजें सेम है. यस, एंड अनदर थिंग इज दैट इन द टेबल्स which were optional in 15 also is optional. There is no need to report any demand or refund amount. Table number 16 is also optional. Now table number 17 is also optional. No need to report HSS summary of outward supply. And table number 18 is also optional. No need to report anything. और टेबल नंबर 19 है, ये तो जब आप GSTR 9 फाइल कर देते हैं तो उसके बाद ही मैंडेटरी होती है. जस्ट होल्ड ऑन. I'm checking that someone is skipped on me. Yes, एक और important चीज, एक और important, yes, very important part. And in various case, taxpayer has received various notices due to the wrong reporting, and I want to mention here, yes, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप GSTR 9 फाइल करते हैं. You have taken inward supply and this supply is liable to reverse charge. Now in table number 4G, you need to report your inward supply which is liable to reverse charge in table number 4G of GSTR 9, inward supply on which tax is to be paid on reverse charge basis. अब हुआ क्या, लास्ट ईयर में आपने उसको रिपोर्ट करना भूल गए. रिपोर्ट करना आपको ध्यान नहीं रहा, कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए था, क्या रिपोर्ट करना चाहिए था, आप भूल गए सब उसको. या आपने क्या किया, 21-22 की जो आपकी इनवर्ड सप्लाई थी, आपने उसका टैक्स पे किया 22-23 में. तो क्वेश्चन अराइज हुआ वेयर इट शुड बी रिपोर्ट. तो कुछ ने क्या किया, कुछ जनों ने क्या किया, कुछ जो रजिस्टर्ड पर्सन उन्होंने क्या किया, दे हैव रिपोर्टेड दिस अमाउंट इन टेबल नंबर 10. दे हैव जस्ट एडेड टैक्सेबल वैल्यू इन टेबल नंबर 10 और दे हैव एडेड टैक्स अमाउंट इन टेबल नंबर 10. और कुछ ने क्या किया, दे हैव एडेड टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स अमाउंट इन टेबल नंबर 4. अब क्या हुआ, जिन्होंने टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट कर दिया था, बिकॉज दिस टेबल अप्लाई इफ टैक्स पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उन्होंने सोचा व्हेन माय इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज एंड आई हैव पेड दिस लायबिलिटी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो इट शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 10. तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेबल अमाउंट को भी टेबल नंबर 10 में डाला और टैक्स अमाउंट को भी टेबल नंबर 10 में डाला. जैसे ही उन्होंने टैक्सेबल वैल्यू को टेबल नंबर 10 में डाला, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली, आप ध्यान से देखना, यहां पर आफ्टर टेबल नंबर 13 डायरेक्टली इन टेबल नंबर 14 देयर इज नो कॉलम फॉर टोटल. यहां पे टोटल का कोई वो नहीं है. लेकिन अगर आप GSTR 9 देखेंगे, मैं एक मिनट में देखता हूं GSTR 9 मेरे पास में है क्या, या मेरा अभी लॉगिन होगा. एक मिनट, मैंने कहां पे लॉगिन किया था. यस, this is GSTR 9 review draft. I hope many of you noted this. This is GSTR 9. In table number 13 there is a, yes, this is table number 10, table number 11, table number 12, table number 13. Thereafter a total of total turnover 5n plus 10 minus 11. This is not given in the form in rule, it is given by the common portal, GSTN portal. अब हुआ क्या, आपने क्या किया, जो RCM की सप्लाई थी ना, टैक्सेबल वैल्यू, वो आपने यहां पे रिपोर्ट कर दी टेबल नंबर 10. और जैसे ही टेबल नंबर 10 में आपने रिपोर्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉफ्टवेयर ने क्या समझ लिया, दैट इट इज योर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि वो यहां पे ऐड हो गई प्लस 10, आपकी यहां पे वो ऐड हो गई प्लस 10 हो गए, तो आपके पास नोटिस आया. तो जो भी आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल, सॉरी, जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, ऑन विच एज ए रजिस्टर्ड पर्सन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू को भूल कर भी टेबल नंबर 10 में मत रिपोर्ट कर देना.
अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो नोटिस पक्का आने वाला है। अब मैं आपको 9C पे लेके चलता हूं। 9C is visible, please tell me. Yes, okay, सॉरी। अभी मैं आपको टैली भी दिखाऊंगा कैसे जल्दी से जल्दी आप GSTR 9 बना सकते हैं। डेफिनेटली आई विल शो यू टैली। दिस इज GSTR 9C. I am talking about the mandatory table. I think now in table number 5, all columns, I think all columns are mandatory. Only table number 6B is optional. Table number 6B is 5B, not 6. Table 5B is optional, and table number G, 5G, because it is pertaining to the financial year or first quarter of the financial year 17-18. So in the financial year 22-23, there is no use in respect of this table. So kindly take care. Now you need to report in each and every column of this table. Earlier, all amount can be put together in table 5O, but now option is not available. So we need to report in each column 5C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Yes. यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस टेबल के अंदर कोई भी डिफरेंस बचता है, if there is any difference in table number 5Q, sorry, if there is any difference in table number 5R, then definitely it will be a difference of taxable supply. Or in table number 5, you need to report total turnover. It will include exempt supply as well as taxable supply. In table number 7 आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपकी यहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी है, टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है। टैक्सेबल सप्लाई में से एग्जेम्प्ट सप्लाई माइनस हो जाएगी और जो डिफरेंस बचेगा इफ एनी, देन इट विल बी डेफिनेटली ए टैक्सेबल टर्नओवर। तो यहां पर आपका जो मैंडेटरी है, टेबल नंबर 5 में ऑलमोस्ट ऑल फील्ड आर मैंडेटरी। टेबल नंबर 7 जस्ट ए रिपोर्टिंग टेबल, ऑल फील्ड आर मैंडेटरी। टेबल नंबर 9 कोई नई चीज नहीं है। You need to report your outward supply and supply which is liable to reverse charge in this table. हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट ईयर ही other, because there may be a different type of tax rate, so लास्ट में एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, but now they have added another other. तो आप इसको कितना भी प्लस करके आपके पास में जो यहाँ पे रेट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई भी रेट है तो आप अदर में जाके उसको फिल कर सकते। Thereafter, if there is a difference on account of table number 9, definitely it will be part of table number 11. Now table number 12, it is very important table. पहले क्या था, it is a table number 12 is the reconciliation of input tax credit between the books of accounts and as reported in GSTR 9. यहां पे क्या था अर्लियर ईयर्स में, बट मुझे लग रहा है लास्ट ईयर से ही क्या हुआ है, यस, इन लास्ट ईयर, in earlier periods prior to financial year 21-22, table number 12B and 12C was optional. अब ये मैंडेटरी है और ये 21-22 से ही मैंडेटरी है। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर 22-23। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आई एम थैंकफुल टू द गॉड, आई एम थैंकफुल टू द CBIC, GSTN, because they have not yet mandatory for filing of table number 14. जिस दिन ये टेबल मैंडेटरी हो गई ना, उस दिन बहुत मुश्किल होने वाली। क्यों मुश्किल होने वाली है, मैंने अभी आपको बताया ना, जब हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो बहुत सारी चीजों को बायपास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार परचेज की मैंने, आई नो दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कार इज इनएलिजिबल टू मी। मैंने क्या किया, उसको डायरेक्टली कार अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया। मैंने उसको डायरेक्टली कार अकाउंट में ही कैपिटलाइज कर दिया और मैं उसको अलग से इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले लूं,
देन आई हैव टू रिवर्स इट। वो नहीं किया, मैंने सारे सिस्टम को बाईपास कर दिया। लेकिन मैं ये बता दूं, जिस दिन ये टेबल मैंडेटरी हो गई ना, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसी के लिए क्या किया है टैली ने, इसी के लिए क्या किया टैली प्राइम ने, फीचर दे दिया है GSTR1, GSTR3B। kindly prepare GSTR1, kindly prepare GSTR3B from the Tally Prime only, and don't bypass any field when you create master data in Tally Prime। और ये कभी भी मैंडेटरी हो सकता है। अब आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा मैं इसमें। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने टी बैग का ऑर्डर किया। टी बैग सपोज 150 का एक टी बैग का पूरा पैकेट है, और मान लेते हैं उसमें सपोज 15 रुपीज 150 का आया, और मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया 15 रुपीज उस पर टैक्स। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 165। जब मैं उसको अपने सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बुक करूंगा, मैं क्या करता हूं, सारा का सारा एक्सपेंडिचर, सपोज मैंने उसको स्टाफ वेलफेयर में डेबिट कर दिया। कितना डेबिट किया 165। मैंने उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलग ही नहीं किया, सॉरी उस इन एलिजिबल आईटीज को मैंने अलग रिपोर्ट नहीं किया, बिकॉज आई हैव स्किप ऑल द फील्ड्स। सो अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया है, या आपके पास में कोई दूसरा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है, परचेजेस, फ्रेट, पावर एंड फ्यूल, रेंट, इंश्योरेंस, गुड्स स्टोलन, रॉयल्टी, एनी एक्सपेंडिचर, पहले हमें बतानी है व्हाट इज द टोटल वैल्यू, अमाउंट ऑफ टोटल आईटीसी, अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। तो अगर मैंने उसको इन एलिजिबल आईटीसी में नहीं डाला ₹15 को, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को तो एक एक एंट्री को चेक करना पड़ेगा ना, कि उसके अंदर कितना अमाउंट है। तो मुझे अभी से ही अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए, every and each ineligible ITC should be passed to the entry, not directly book the expenditure account। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए मैंने एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको बुक कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई नीड टू चेक ईच एंड एवरी बिल, और मैं देखूंगा कि इसके अंदर कितना अमाउंट था। तो मैं यहां पे लिखूंगा माई टोटल कंज्यूमेबल आइटम वैल्यू इज 165। It is not asking about the taxable value. It is asking only value 165. Amount of total ITC. Amount of total ITC is 15 rupees. Amount of eligible ITC 0. मैं लिख तो तब पाऊंगा ना जब मैं उसको एक एक वाउचर निकाल के देखूं। लेकिन अगर आपके पास में टैली प्राइम है and you have not passes any field at the time of creating of the master data, and you have create all the data entry, and you are preparing your GSTR1 or 3B from this software only, then this software will taken care each and every item which need to be reported in table number 14। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं लूंगा। नाउ हाउ टू रिवर्स द इनएलिजिबल आईटीसी बैक टू एक्सपेंसेस, हाउ टू रिवर्स द इनएलिजिबल आईटीसी बैक टू एक्सपेंसेस। करना क्या है सर आपको, फर्स्ट यू पुट योर टैक्स into input tax credit ledger, then thereafter transfer it to ineligible input tax credit, thereafter this amount can be transferred to the car account or rate and taxes account। this way you can do this। please let us know how we can classify all as per the table 14 in Tally Prime। I am taking this question backward। कुछ जरूरत नहीं है सर करने की, kindly take care all the fields which is provided by the Tally Prime, and don't bypass at the time of entry and creating all account as advised by the Tally Prime। You will get this report by click। और टैली सीखने के लिए ना आपको दो ही चीज आनी चाहिए, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ, एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप। मुझे सबसे बढ़िया यही दो चीजें लगती है। नाउ आई वांट टू जस्ट शो यू Tally Prime also, that how I am doing working through Tally Prime since 2017-18। So Tally Prime is visible, please tell me। Yes please। okay okay। मैंने एक बहुत छोटा सा एक ये पार्टी है जिसका मैंने डाटा लिया है यहाँ पे, एक मिनट।
टैली प्राइम पे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। गो टू है, ऑन ए सिंगल क्लिक आई कैन चेक ऑल दी GSTN डिटेल्स ऑफ माई डेटर्स, ऑफ क्रेडिटर्स, देयर मास्टर डाटा, अगर कोई उसमें डिफरेंस है। ये तो खैर अब टैली प्राइम की पुरानी बात हो चुकी, और बहुत सारे आप फीचर इस्तेमाल कर भी रहे होंगे, और अभी और भी नई चीजें आने वाली हैं। टैली प्राइम के थ्रू अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है टैली ने और एक तरह से अभी ये कुछ कुछ ERP के थ्रू में भी, ERP के रूप में भी काम करने लगा है। और आपको अभी एक रिसेंट अपडेट बता रहा हूँ इसका। अभी तक आपके पास में ऑप्शन था, यू कैन सेंड एनी स्टेटमेंट थ्रू ईमेल, बट नाउ टैली प्राइम इज प्रोवाइडिंग टू एन फीचर कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप एक सिंगल क्लिक करेंगे इसी पे, टैली प्राइम पे, आपको अलग से ऐसा नहीं है कि पहले आप रिपोर्ट को सेव करेंगे देन यू विल सेंड थ्रू द व्हाट्सएप। आप यहीं से जो आपने नंबर सेव कर रखा होगा मास्टर डाटा के अंदर, उसको रिपोर्ट चली जाएगी सिंगल क्लिक पे। आपका सेल्स है, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपको उसको रिमाइंड कराना है। वो कहता है ना सर एक बार रिपोर्ट भेज दो ना, फिर आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं। सो इट विल टेक केयर ऑल दीज। और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, बट मेरा मेन फोकस है कि मैं कैसे तैयार करता हूँ 17-18 से। मुझे कुछ नहीं करना होता, मैंने अपने स्टाफ को पूरी तरह इसके लिए ट्रेन किया। मेरा स्टाफ सारा काम करता है, क्योंकि मुझे पता था मैं सारा काम नहीं कर पाऊंगा इसके थ्रू, क्योंकि आपको पता है लास्ट में बहुत सारा काम होता है। मैंने उनको क्या किया हुआ, सॉफ्टवेयर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। अगर मैंने अलग अलग फील्ड सेट किए हुए हैं, सेंट्रल सेल है, लोकल सेल है, सेल्स अकाउंट है, मैं यहां से भी जा सकता हूँ। अगर मैंने कोई वहां पर अलग फील्ड सिलेक्ट नहीं कर रखे हैं, मतलब मैंने सेल्स का अलग अलग नहीं खोला हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल रजिस्टर में भी जा सकता हूँ। यहाँ से आप यहाँ से सेल रजिस्टर में भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं सेल रजिस्टर में चला गया, मैंने क्या किया, और मैं आपको बात बताऊं, मैं एक काम करता हूं मेरी 2 रिपोर्ट तैयार होती हैं। सबसे मजे की बात बता रहा हूं आपको, कैसे रिपोर्ट तैयार होती है। आई एम वर्किंग फॉर GSTR 9, बट साइमल्टेनियसली माई रिपोर्ट रेट वाइज लाइबिलिटी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग दिस। कैसे, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं देखिए आपके सामने भी कॉलमर करके कहां पे गया हूं, सेल्स उसमें सेल रजिस्टर में गया, मैंने ये कॉलमर किया। अभी आपके सामने देखिए कितना टाइम लगे, देख लेते हैं। अभी मेरा शायद कंप्यूटर स्लो है, इतना टाइम इसलिए लग रहा है, अदरवाइज तो अब तक हो जाना चाहिए था। यस, ये आपकी, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट में गया, मैं यही करता हूँ, और ये मैं अपने स्टाफ को बोल के रखता हूँ कि आपको ऐसा करना है। और मैंने क्या किया, ये डे बुक, चलो कोई भी फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी सॉरी सॉरी मुझे एक्सेल में करनी थी, गलती से PDF में हो गई, कोई बात नहीं। अभी दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट में किया, एक्सपोर्ट में जाके मैंने इसको अभी एक्सेल में करता हूँ मैं। ये मैं गया यहाँ पर, ये बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है, अदरवाइज तो कई बार PDF में आ जाता तो चीजें होती नहीं है। बट नाउ प्लीज, ये अभी जितनी की सारी जो आपकी रिपोर्ट है, ये आपकी पूरी की पूरी अभी एक्सेल में आ जाने वाली। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कई बार क्या होता है, बिकॉज हम लोग ना बाईपास कर देते हैं चीजों को, तो उससे अगर GSTR 1 और GSTR 3 भी, आई एम प्रिपेयरिंग GSTR 1 और GSTR 3 भी फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर, फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर ओनली, देन इट विल बी टेकन केयर बाय दिस सॉफ्टवेयर। और मैं क्या करूंगा, मंथली बेसिस पर उसका रिकंसिलेशन बनाता रहूंगा। बट मैं तो क्या करता हूँ, मैंने तो सारी बाईपास कर दी चीजें। आई एम ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट, और मुझे नहीं पता कि ई इनवाइस कैसे बनता है, कुछ नहीं बनता। मैं तो डाटा एंट्री करने आता हूँ बस। और मेरे को CA ने बोला, मेरे को मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने बोला कि भाई 9 बनानी है, कोई बात नहीं सर, GSTR 3 भी ले लो पोर्टल से, GSTR 1 ले लो पोर्टल से, ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होगा। और उसने मेरे को रॉ डाटा दे दिया। मुझे क्या करना है, ये मेरे सामने रेट वाइज और टैक्स वाइज सारी लाइबिलिटी आ गई। अब मुझे थोड़ा सा एक मेथड अप्लाई करना होगा, बड़ा सिंपल सा। जैसे मान लीजिए इट इज माई लोकल सेल, अगर कोई भी मिस्टेक होगी यहाँ पे, वो मेरे को अभी पता लग जाएगी। लाइन आइटम मेरे कितने भी हो सकते हैं, आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9%। देखिए अगर गलती होगी तो अभी बता देगा। मैं यहाँ पे अभी तो आपको सिंपल दिखा, 9%। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक फार्मूला लगाया यहाँ पे,
माइनस दिस CGST। अगर यहां पर कोई भी डिफरेंस अराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी एंट्री यस, देखिए यहां पर अभी देखता हूं, यस देयर इज डिफरेंस ऑफ ₹45। अब 45 किस लिए है मुझे पता लग जाएगा, यहाँ पर 500 का क्या है, फ्रेट चार्जेस है। और जब मैं टैली में देखूंगा ना, ये हो सकता है मेरा डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, मेरा क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, मैंने सब चीजों को बाईपास कर दिया है। और देख लेते हैं कहीं, अगर अभी अभी तो मैंने सिर्फ यस, देखिए यस, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 8370 का डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये क्यों आ रहा है, ये IGST है। अब आप देखना, मैंने हेड कौन सा खोला हुआ है, इट इज माई लोकल सेल, मीन इट इज माई इंट्रा स्टेट सेल। जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट है उनको नहीं पता इंटर और इंट्रा क्या है, वो तो बताते हैं जी लोकल और सेंट्रल क्या है। इट इज माई इंट्रा स्टेट सप्लाई, और उन्होंने क्या किया, IGST आउटपुट के अंदर अमाउंट फिट कर दिया। तो इसका मतलब मुझे ये चेक करना पड़ेगा व्हाट अमाउंट वाज रिपोर्टेड इन GSTR1 एंड 3B, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, आगे भी कोई डिफरेंस है क्या, यस यहां पर भी डिफरेंस है। यहां पे देखिए इन्होंने क्या किया, अभी देखते हैं व्हाई दिस डिफरेंस इज अराइज हियर। टोटल लोकल सेल इज 87,850, और उन्होंने क्या किया गलती से, मैं गलती कहूंगा, ये देखिए जो फर्स्ट कॉलम है वो CGST का है, एंड देयर आफ्टर इट इज कॉलम फॉर SGST। और उन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो अमाउंट है कहां पे था, यस उन्होंने ये वाला अमाउंट एक ही जगह CGST में रिपोर्ट कर दिया। अब जरा इस एंट्री को चेक करते हैं, इस एंट्री को चेक करते हैं, ये कौन सी डेट की है, 17 दिसंबर 22, प्लीज 17 दिसंबर 22, 17 दिसंबर 22, एक मिनट, ये वाली एंट्री अभी देखते हैं सर आपके सामने। यस दिस इज द मिस्टेक, आउटपुट CGST एंड आउटपुट CGST, और जो सेकंड वाला अकाउंट कौन सा होना चाहिए, आउटपुट SGST। तो यहां पर क्या हुआ, ये वो वाली मिस्टेक है जिन्हें मैं खुद एज ए चार्ट अकाउंटेंट, मुझे खुद को इन्वॉल्व नहीं करना, मैं अपने स्टाफ को कह सकता हूं कि आप ये वाली मिस्टेक है ना, ये टेकन केयर कर लीजिए। और अब तो क्या है कि जितनी भी इस टाइप की मिस्टेक है, बिकॉज वी आर फाइलिंग अवर GSTR1 एंड GSTR3B for the month of October 2023. If there any such mistake, then we can correct it in this month only, in the month of November, because government extend the rectification right up to 30th November 2023. आपको करना क्या है सर, मैंने कितना टाइम लगाया, अभी तो हार्डली मुश्किल से मैंने 2 मिनट इसके बारे में आपको बताना चालू किया। और एंट्री देख लेते हैं, कुछ और भी हो सकती है, यस देयर इज डिफरेंस, यस अनदर 4962। अच्छा ये तो अभी मैंने आपको एक रखा, नाउ अनदर अगेन 9%, और इसके बाद मैंने क्या किया, यहां से माइनस कर देता हूं, माइनस, नाउ दिस टाइम SGST, यस अगेन इन केस ऑफ SGST यहां पर भी देखिए मिस्टेक है। इन 2nd June it is a supply, intrastate supply, and I have put accountant has put all the amount in output CGST, और वो क्या, वो भूल गया। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि GSTR3B और GSTR1 में ऐसा डिपॉजिट हो गया। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि GSTR3B इसका टेकन केयर नहीं करता, उसके पास ऐसा कोई चेक नहीं है कि रेट वाइज लाइबिलिटी, क्यों नहीं है, आई वांट टू टेल यू। माई सप्लाई सपोज 5%, 12%, 18%, 28%, माई टोटल सप्लाई इज 5 lakhs, ऑल इनवाइस हैविंग डिफरेंट रेट्स, तो GSTR3B कैसे टेकन केयर करेगा। तो आपको क्या करना है, इतना आपने करना है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगना आपके स्टाफ को, जितना भी आपका सेल्स का डेटा है उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट कराइए, और आपको ये फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आने वाली है, एनी डिफरेंस which can be arise due to the wrong reporting of
ड्यू टू द रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई और सफलिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स और CGST, SGST, IGST, तो ये आपको इमीडिएट पता लग जाएगा। और ये तो आप अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में कभी भी करा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर होगा क्या, आप देखिए, मैंने आपको ना अभी एक वो दिखाया था GSTR 9, प्लीज बी विद मी। यस, दिस इज द टेबल नंबर 9, दिस इज द टेबल नंबर 9। मैंने बताया था काम के एक के लिए करूंगा, रिपोर्टिंग 2 जगह करनी है, टाइम कितना सेव होता है। इन टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9C, दिस इज टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9C। आपको क्या करना है, आपको रेट वाइज लाइबिलिटी तो निकालनी है। मेरे पास वहां रेट भी है, मेरे पास वहां पे टैक्सेबल वैल्यू भी है, मेरे पास वहां पे टैक्स भी है, तो मैं पुट कर दूंगा ना। सपोज माय टैक्सेबल वैल्यू इज 50 lakhs, सो आई पुट इट 9E 50 lakhs, और जो मेरा टैक्स है वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, अपने आप आ जाएगा मेरा। और मेरा ये मैच कहां से होगा, ये मेरा मैच वहां से होगा जहां से मैंने भी आपको एक्सेल दिखाया। जैसे ही अभी तो मैं 9 पे लेके भी नहीं गया आपको, आपके पास में देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट 9C इज नॉट एप्लीकेबल, because 9C is applicable if aggregate turnover is more than 5 CR, and 9 is mandatory if aggregate turnover is more than 2 crore. Yes, 9 is mandatory if turnover is more than 2 crore, and 9C is mandatory when turnover is aggregate turnover is more than 5 CR. यहां पर क्या हुआ, अभी तो आपने GSTR 9 का केवल टेबल नंबर 9 रेडी कर लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं GSTR 9 पे। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे there are 5 important table, there are 5 important table in GSTR 9 on my left hand, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 and 9। और मैंने 9 में आपको क्या बताया था, मैंने आपको 9 में ये बताया था, all liability should be reported in table number 9 if it is not paid in the next financial year. If it is paid during the financial year, means 22-23 liability paid in 22-23, then it will be reported in table number 9। और सर मैंने तो भी आपको दिखाया ना, क्या दिखाया कि रेट ऑफ टैक्स कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो जो GSTR 9 की रेट वाइज लाइबिलिटी के लिए आपने काम किया था, वो आपका यहां से मैच होना चाहिए, टेबल नंबर 9 में पेबल में आएगा ना। और यहाँ पे कौन सा वाला अमाउंट आएगा, जो टेबल नंबर 4 में आएगा। तो सर मैंने एक काम किया भी एक्सेल में, आपकी टेबल नंबर 4 रेडी है, आपकी टेबल नंबर 5 रेडी है, आपकी टेबल नंबर 9 रेडी है, आपकी GSTR 9C की टेबल नंबर 9 रेडी है, टेबल नंबर 10 रेडी है, और टेबल नंबर 11 रेडी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक टेबल देखा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी अब ITC पे चलते हैं, देखते हैं ITC पे क्या रहता है इसमें। अभी तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। अब मैं बात करता हूँ परचेज की। यस, परचेज में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, लेकिन ये काम आपने नहीं करना, आपके स्टाफ ने करना। आपने नहीं करना, आपके स्टाफ ने करना, मैं ये बता दूं आपको, तो उसको वेरीफाई करना। लोकल परचेज अगेन पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, उनको पता ही नहीं इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उनको तो ये पता है सेंट्रल परचेज एंड लोकल परचेज। इस पे मैं दोबारा यहीं पे लोकल परचेज अगेन मैंने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगेन मैं इसी कॉलमर में जा सकता, और कॉलमर में जाके फिर मैं इसको चेक कर सकता। देखते हैं अभी क्या आता है, एक मिनट, सॉरी। यस, अब मैं भी आपको क्या बता रहा था, टेबल नंबर 14, इट इज ऑप्शनल राइट नाउ। और ये ऑप्शनल कब से है, ये 2017-18 से ऑप्शनल है। जिस दिन लेकिन ये मैंडेटरी हो गई ना, बहुत मुश्किल होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपको इसके बारे में भी बात करता हूँ, एक मिनट। नाउ इट इज एन एक्सेल, यस डेबो। मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये उसी को ओवरराइड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, नहीं, मैं जान के नाम चेंज कर रहा हूँ, आप नाम चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, वो अपडेट कर देता है। यस,
अभी आपके सामने एक्सेल की रिपोर्ट तैयार होगी। इतने एक्सेल की रिपोर्ट तैयार हो रही है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस एक और शेयर करना चाहूंगा विद टैली प्राइम। व्हेन आई हैव मेड फर्स्ट टाइम ई इनवॉइस, आई हैव मेड इट ऑफलाइन और मेरा आधा घंटा लगा था फर्स्ट ई इनवॉइस बनाने में। इट वाज ऑफलाइन। व्हेन आई मेड इट थ्रू टैली प्राइम, विदिन फर्स्ट टाइम विदिन 8 सेकंड आई हैव प्रिपेयर्ड माय ई इनवॉइस। और ये सारी चीजों का आपको टेकन केयर कर लेगा। अगर आपकी कहीं कोई मिस्टेक भी आती है ना, तो वो भी आपको अलग से रिपोर्ट कर देगा। आपको गो टू टैब में जाने की जरूरत है एंड इट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज माय परचेज डिटेल इन एक्सेल। यहाँ पे भी मैं फार्मूला लगाना चाहूँ, आई कैन पुट दिस फार्मूला और मैं चेक कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं क्यों चेक करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला लगा के, इन फ्यू केसेस परचेज के साथ कई बार फ्रेट लग के आता है, कई बार पैकिंग चार्जेस लग के आते हैं, कई बार लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लग के, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे वो सब मिलेगा आपको, क्योंकि है तो वो आपकी कंबाइंड एंट्री ना, सिंगल एंट्री है। वो अभी क्या होगा, एक तो आपकी गई होगी परचेज में, एक आपकी गई होगी पैकिंग में, फ्रेट में, लोडिंग में। इट मे बी डायरेक्ट part time accountant has booked as a direct expenses, or it maybe has booked as a indirect expenses, but it is a combined entry, and in this excel report you will find here all these combined details. तो यहाँ पर भी आप उसी फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा था कि आपने क्या किया, आपने तो टैली प्राइम को भूल गए, मेरा बेकार चीज है, कौन इतने झंझटों में पड़ेगा। और पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, उसने क्या किया, सारे फील्ड को बायपास कर दिया। कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट तो है ना। सपोज नाउ टेबल नंबर 14 इज मैंडेटरी। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं जो जीएसटीआर 9 बनाता हूं उसके अंदर कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन जो मेरे यहाँ पे टेबल नंबर 14 है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये मेरे यहाँ पे सबसे पहले रेडी होती है। सबसे पहले रेडी होती है। क्यों रेडी होती है ये जो टेबल नंबर 14 है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपने यहाँ पे ये पॉलिसी फॉलो कर रखी है कि मुझे ये एक्सेल का जो डेटा है ना, ये मुझे रेडी कर, मुझे लाइन आइटम मिल जाता है यहाँ से। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बायपास कर देते हैं चीजों, और जो बायपास नहीं करते उनके लिए तो टैली काफी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेबल नंबर 14 का इस तरह से बाइफर्केशन करवाया। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या मुश्किल आने वाली है, जो छोटी सी मुश्किल है वो ये है कि सेल में तो आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 हेड होंगे, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपेंस के हेड होंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक्सपेंस में से आईटीसी अलग कर। If you have booked input tax credit which is related to the expenses in a separate account, then it will be reflected in Excel in a separate line. और अगर आपने उसको अलग से बुक नहीं किया तो वो दिखाएगा ही नहीं। So it is my humble request to all of you, first of all, kindly don't bypass any field in the Tally Prime. और अगर आप ऐसा करते हैं तो then also you need to open a separate account for ineligible input tax credit. क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तो पता नहीं, ये 23 24 से मैंडेटरी हो गया ना टेबल नंबर 14, तो बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि दोबारा डाटा एंट्री होनी नहीं है। अगर आपकी एंट्री डाटा एंट्री बहुत कम है, सपोज 500 1000, लेकिन जहां आपकी डाटा एंट्री मोर देन 10,000 50,000 है, हाउ इट इज पॉसिबल यू कैन बाइफरकेट ऑल द अमाउंट व्हिच हैव यू ऑलरेडी एंटर्ड? बड़ा मुश्किल होने वाला है। सो मैंने आपको बता दिया एक्सेल के थ्रू मैं कैसे टैली प्राइम को यूज करके, पहले मैं टैली जो अपना 9 था मैं तो उसी को यूज कर रहा था, ये तो अब आया है खैर बाद में। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास एक रिफाइंड फॉर्म में डेटा आता है, मेरा स्टाफ मुझे बना के देता है, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ और ऑल डिफरेंट एंगल से उसको जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 कंसोलिडेटेड और जो मास्टर मेरी फाइल्स डाउनलोड होके आती हैं जो ऑटो पॉपुलेटेड है जीएसटीआर 9, मैं उससे कंपेयर करके आई विल प्रिपेयर माई जीएसटीआर 9। सो दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और मैं चैट में भी क्या करता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी मैं पुट कर देता हूँ। सो you can ask any question anytime. My email address is very simple, rkcamballb@gmail.com, and my mobile number is 9818595050. I am seeing some question in Q&A session.
First question is Sobhik Mandal. Sir, some months credit note reflected as ITC reverse and rest of month credit note is balance from ITC. Yes. स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो क्रेडिट नोट थे they were reflecting in table number 4B2, but thereafter GSTN has corrected their reporting system and now they are reflecting minus in table 4A5. It is a net ITC. Yes. In that case, what I do, sir, what you will do, आपको तो जैसे रिपोर्ट करना है वैसे ही रिपोर्ट करेंगे. Reporting system has been changed by, so you will take input tax credit in table number 4A5 net of input, net of credit. Pratibha, what should be the treatment of ITC reflected in 2B but not booked in our, not, sorry, what should be the treatment of ITC reflected in 2B but not booked in our books of account in GSTR 3B? There may be two situations, that this ITC is not pertaining to you and this ITC is pertaining to you. If this ITC is pertaining to you, then definitely what should be the treatment? Then definitely first you need to take in 4A5, then you need to reverse in table number 4B. And if it is not pertaining to you but still is reflecting in 2B, so I think kindly leave it. Difference shown in M, okay, it is your perception. As I have already informed that if you can adjust it in table number 6M, Sobhik Mandal, if you can show it in table number 6M, it is your perception, it is not my perception, but both perception are correct, because right now there is no advisory how to report all these difference in GSTR 9. Table 17 is mandatory or optional? Sir, table number 17 is optional, it is not mandatory. Karthik, if invoice is missed for the previous financial year 22-23 and it is included in GSTR of October, how to report in GSTR 9, sir? Okay. Your question that if invoice is missed in GSTR 1 in financial year 22-23. Now my question is whether you have paid the output tax liability with respect to this invoice. If you have paid output tax liability with respect to this invoice in the financial year 22-23 itself, then it should be reported in GSTR 9 in table number 4. If you have paid output tax liability with respect to this invoice in the financial year 23-24, then definitely it will be part of table number 10 of GSTR 9. How to input HSN details in Tally? Jyoti Jalan, you can ask this question separately. I will tell you process how you input HSN detail in Tally. Next question ना बहुत तेजी से आ रहे हैं. Sales of 21-22. Sales of 21-22 shown in R1 and RB 22-23. Will it be auto populated in table 4 of R9? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है जी, देखिए सेल्स है 21-22 की, R1 और RB में 22-23 में रिपोर्ट किया है. Will it be auto populated in table 4 of GSTR 9? देखिए, अगर आपने अपनी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई 21-22 की थी 22-23 में रिपोर्ट किया, डेफिनेटली इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 9. और आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है? आपको तो 21-22 की जब आपने GSTR 9 फाइल किया होगा तो आपने इसको कहां पे दिखाना चाहिए था? आपको दिखाना चाहिए था टेबल नंबर 10 ऑफ GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22. This will not be part of financial year 22-23. How to show RCM liability of 22-23 paid in 23-24 in GSTN? Very important question. और इस क्वेश्चन की वजह से, सही रिपोर्टिंग ना करने की वजह से बहुत सारे नोटिस आए हैं. प्रेस रिलीज आया था, विकास जी
प्रेस रिलीज आया था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने आरसीएम की लायबिलिटी को पे किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट करना है. सो इट इज माय ओपिनियन यू नीड टू रिपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, not in the financial year 22-23 if you have paid your RCM liability in financial year 23-24. Again, Pratibha, if in GSTR 3B reporting is not done properly regarding ITC, then whether we can regularize this by giving correct detail in GSTR 9. Okay, प्रतिभा जी, GSTR 9 में ना कोई आप ITC ले सकते हैं, ना आप कोई आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं. There is no mechanism. Any incorrect reporting can be corrected through GSTR 9. But अभी आपके पास ऑप्शन है for the financial year 22-23 because you will file your GSTR 1 for the month of October 2023 in this GSTR 1 and GSTR 3B for the month of October 2023. You can correct your all mistake in GSTR 1, GSTR 3B, which is going to be filed on 10th and 20th of this month, means November. I will create only IV create only one CGST input, one SGST input, and one IGST input account instead of rate wise. What will be the problem? Problem कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी सर आपकी. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आपने सेम लेजर क्रिएट किया, you have created the same ledger. This is for intrastate supply, this is for intrastate supply, and you have not created your ledger on the rate wise. Then definitely आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है थ्रू एक्सेल मैकेनिज्म. लेकिन मैंने इसको 2017-18 में समझ लिया था. That's why I'm always advising to my part-time accountants that create each and every ledger rate wise. GST, TDS, pass. Ankita Jain, how to show split purchase return, credit note and not eligible input GST 9 reversal. How to show split purchase return? I am unable to understand the question. एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ. How to show split purchase return, credit note and not eligible. Please, Ankita ji, you can ask this question separately from me. How to pass the ineligible credit in Tally Prime? Kiran, this is very simple. Create a new account, ineligible input tax credit. Enter all the amount which is ineligible in this account, and at the end of year, you will get the amount what is the ineligible input tax credit, and from this account, you can pass this amount to respective ad. If you have capitalized your asset, then definitely you can transfer your ineligible account to that particular asset account so that you can claim the depreciation on ineligible input tax credit. So all the questions which is right now mentioning in Q&A, I have taken care. Okay. Yes, sir. I think we have covered more and most of the questions, and in such short duration, I think everybody is super happy. So I think two people raised their hands. Can we just take one question just very quickly? Vivek Gupta ji. Yeah, Mr. Vivek Gupta, Mr. Ravikant Goel, Mr. Praveen Reddy, you had a question? Because I think I already 1 and 30 minutes already passed. Yeah. I was expecting only for 60 minutes. I was actually, so that was the point that I did not know that the topic would extend that much. Oh my God, so many raised hands. So in the interest of time, I will actually have to refrain from taking the questions. However, we have put the email ID of Rajesh sir. So you can please send him your query and he will answer once he gets time. Okay, so thank you so much, Rajesh sir, for this superb sessions. Thank you so much. I will now end the session. Okay. Yeah. Thank you, Rajesh sir.